Hello friends, welcome on your Pedia. I am Vishal Sharma. And friends, in last class we have studied a topic that is crypt arithmetic. Okay, that topic we have studied, and we have solved some questions, 4 questions, and 3 questions I give you for your like homework. Okay, so first I will continue that topic with a multiplication case. Okay, because in last class, friends, we have discussed about in crypto arithmetic problems there are some unknown alphabets. Okay, so and mathematical operator such that like plus, minus, multiplication, division, that you can say operator, mathematical operator that is applied between the unknown alphabets. Okay, so plus case we have discussed between the two you can say 2 digits or 2 alphabets. Okay, first I have discussed I will discuss a case of multiplication, and then we will solve those questions also that I have given you in your homework. Okay, so friends, let's first discuss first question. Okay, so the question is like this, friends: A, B, C, D, E. Given is what is given? A, B, C, D into 4. It is given like A, B, C, D into 4. That is equal to E, D, C, B, A. Friends, question is such that like this, the product of A, B, C, D into 4 equal to E, D, C, B, A. Then find out. Find A plus B plus C plus D plus E. Okay, so this information is given to you. Okay, this information is given. Okay, and he is asking about this. Find sum of A, B, C, D plus E. Okay, so how to solve these type of questions? Very only one step that is different from the addition, that is the knowing the division or multiplication of a number. Okay, so if you know like any number which what you will get after multiplication 4, and what are the number which are divisible by 4. Okay, so if you know about the divisibility concept and multiplication concept, then easily you can solve these type of questions also. Okay, so just in number system, I think somewhere in number system you will study the divisibility concept. Okay, divisibility by 1, divisibility by 2, divisibility by 3, something like this, and multiplication also. Okay, so what from this you can conclude? Okay, how to solve these type of questions? Let's solve this question first. So friends, what is given? Product of A, B, C, D equal to E, D, C, B, A. Okay, and you know any number which is when multiplied by 4, so what you will get? You will get always an even number. 4 multiplied by 1 is 4. 4 multiplied by 2, 8. 4 multiplied by 3 is 12. Always the multiple of 4 is always an even number. So from this, friends, what you can conclude? You can conclude this A must be, this A must be 0, 2, 4, 6 and 8, because all are distinct. What is common information? All are distinct and all are having values from 0 to 9. सबकी वैल्यू क्या है? 0 से 9 के बीच में है. ओके, सो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए. ठीक है, पहला कंक्लूजन क्या कि ए 0 नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए फ्रेंड्स क्रिप्ट अरिथमेटिक का, फर्स्ट नंबर कभी भी 0 नहीं होगा. ठीक है, अगर यहाँ पे ए लिखा है, इट विल नेवर बी 0. ओके, कोई भी नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा. ओके, सो ए 0 नहीं है. अगर ये 0 होता तो यहाँ पे ये बीच फर्स्ट नंबर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता. सो जब ये ए 0 नहीं है तो हमने 0 कट कर दिया. ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि ए 4, 6, 8 भी नहीं हो सकता. ए कैन नेवर बी इक्वल टू 4, 6, 8. वाई? बिकॉज अगर ए 4 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होगा भाई? 16. अगर मान लीजिए कि यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड है या नहीं भी है, बट दिस वैल्यू यू विल गेट मोर देन 10. अगर कैरी फॉरवर्ड है तब भी आपको 10 से ज्यादा मिलेगा. ठीक है, अगर नहीं भी है तब भी आपको क्या मिल रहा है? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज मोर देन 10, 16. एंड सेम विद 6 एंड 8 ऑल्सो. ठीक है, और ये सिंगल डिजिट दिख रहा है आपको. 4 मल्टीप्लाई बाय ए, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? सिंगल डिजिट ई. इट मींस ए क्या है? इट कैन नेवर बी इक्वल टू 4. ना तो ये 4 हो सकता, ना 6 हो सकता, ना ही 8 हो सकता, क्योंकि अगर ये 4, 6 या 8 होता तो देयर मस्ट बी सम कैरी फॉरवर्ड. यहाँ पे कुछ ना कुछ क्या होता? कैरी फॉरवर्ड होता, जो कि यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रहा है. इट मींस ए की वैल्यू एक ही बचती है, वो क्या है? 2. इट मींस ए इक्वल टू 2. इट मींस ए इक्वल टू क्या है? 2. अब मैं इसको रब कर सकता हूं और सिंपली आई कैन राइट 2 हेयर. सिंपली आई कैन राइट 2 हेयर बिकॉज ए कितना हो गया हमारा? ए इज इक्वल टू 2. ठीक है, अब देखिए
ए इक्वल टू क्या हो गया 2। अब मेरे को यहां पे कंक्लूजन निकालना है कि ई क्या है, ई क्या है, ठीक है। अब देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, 8 हो सकता है अगर यहाँ से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, बट अगर कैरी फॉरवर्ड है तो ये क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। बट हमें एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ई क्या हो सकता है, देखो ई क्या हो सकता है। अगर हमें यहाँ पे 2 चाहिए तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 2 आए, किससे मल्टीप्लाई करें कि 2 आए, तो क्या हो सकता है, देखो अगर मैं ई को रखता हूं 3, अगर मैं ई को क्या रखता हूं 3, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अभी मैं ई को क्या रख रहा हूं 3, ठीक है, तो 4 थी 12, यहाँ पे 2 तो आ जाएगा, बट यहाँ पे क्या 3 आ सकता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 तो यही हो रहा है भाई, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो यही है, इट मींस 8, क्या 5 कैरी फोर्ड हो सकता है, 5 कैरी फोर्ड नहीं हो सकता, क्योंकि 4 का मल्टीप्लीकेशन कहां तक जाएगा, मैक्सिमम 40 तक जाएगा, तो 39 तक 36 तक जा सकता है, तो मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना हो सकता है, 3 हो सकता है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 9 इज 36, ओके, 36 का मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना हो सकता है 3। अब 4 को आप 11 से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऑल आर सिंगल डिजिट, ऑल आर सिंगल डिजिट, इसलिए यहाँ पे अगर मैं 8 लिखता हूं तो 8 प्लस 3 13 यहाँ पे नहीं बन सकता, इट मीन ये 3 नहीं हो सकता, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है भाई, दूसरा ऑप्शन बचता है ई इक्वल टू 8, ई कितना है 8 है, दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि ई इक्वल टू क्या है 8 है, क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 32, और ये हमारा सेट बनता है, तो यहां पे भी हम 8 लिख सकते हैं और यहां पे भी हम क्या लिख सकते हैं 8 लिख सकते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 32, और 3 हमारा क्या चला जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 3 हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, और यहां से क्या दिख रहा है हमें 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, इट मींस यहां से कैरी फॉरवर्ड क्या है 0, यहां से कैरी फॉरवर्ड क्या है 0, इट मीन जो डी है वो क्या है सिंगल डिजिट नंबर है, मतलब ये डी क्या है इट इज लेस देन 10, ठीक है, वो तो वैसे भी है, बट यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां से हमें कंक्लूजन निकल जाता है कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 3। अब ये डी क्या होना चाहिए, ये डी क्या होना चाहिए, अब देखो यहाँ पे सेकंड कंसेप्ट क्या आता है कि जो ये बी और ए है, जो क्या है बी एंड ए, ये बी और ए क्या होना चाहिए भाई, for any number which is multiple of 4, any number which is multiple of 4, last two digits are divisible by 4, हमेशा कोई भी नंबर जो 4 से क्या होता है डिविजिबल होता है या 4 का मल्टीपल होता है, लास्ट टू डिजिट्स आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, लास्ट की जो 2 डिजिट्स होंगी वो क्या होंगी, दे आर डिविजिबल बाय 4, इट मींस बी और ए क्या होना चाहिए 4 का डिविजिबल होना चाहिए। अब 4 के डिविजिबल के लिए बी और ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बी और ए को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 तो यहां ऑलरेडी है, तो क्या मैं 1 2 लिख सकता हूं बी और ए को, क्या मैं बी और ए को 1 2 लिख सकता हूं, यस 1 2 यहां पे बन सकता है, 1 2 यहां पे बन सकता है, ठीक है। और क्या बन सकता है भाई, यहां पे मल्टीपल के लिए क्या मैं इसको 1 1 के बाद क्या मैं 2 2 लिख सकता हूं, 2 तो नहीं हो सकता क्योंकि ए इज ऑलरेडी 2, तो 2 2 नहीं हो सकता, क्या मैं 3 2 लिख सकता हूं, 3 2 लिख सकता हूं, 32 भी हो सकता है, 32 भी हो सकता है, क्या मैं 4 2 लिख सकता हूं, नहीं, क्योंकि 4 2 तो क्या है इसका मल्टीपल ही नहीं है, 4 क्या है, 4 2 क्या है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 42 क्या है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 40 का 4 का मल्टीपल क्या है 40, 40 के बाद 44, तो 42 क्या है इसका डिविजिबल नहीं है, और 55 ये कभी हो नहीं सकता, 55 52 ये कभी भी हो नहीं सकता, 42 पे डिविजिबल नहीं है, और 52 क्या है 52 इज मल्टीपल ऑफ 4, बट 52 ये कभी भी नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज 52 होने के लिए क्या होना चाहिए, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना भी करूं मैं, मैक्सिमम इसको 9 भी रख दूं, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 4 36, 36 बाय प्लस 3 39, तो ये क्या है 39 ही हो सकता है, मैक्सिमम 52 नहीं हो सकता, इट मीन या तो ये यहाँ पे 12 होना चाहिए या यहाँ पे 32 होना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 12 रखता हूं, अगर मैं इसको बी को क्या मानता हूं 1, बी को क्या मानता हूं 1, तो ये क्या होना चाहिए डी क्या होना चाहिए, डी मस्ट बी 2, डी क्या होना चाहिए 2, क्योंकि अगर इसको क्या करूंगा मैं, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, और 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 प्लस 3 क्या हो जाएगा 11, तो हमारा 12 बन रहा है, ठीक है। तो एक तो ये कंक्लूजन बन सकता है, तो अगर मैं इसको 2 रखता हूं तो बी कितना हो रहा है, देखो 1 हो रहा है, बी कितना हो रहा है 1, और डी कितना है 2, डी कितना है 2, तो क्या ऐसा हो सकता है, देखो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाय इज 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, 4 में मैं क्या 12 बना सकता हूं, क्योंकि कोई कैरी फॉरवर्ड भी नहीं है, तो क्या मैं 4 से 2 बना सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, 4 से मैं 2 नहीं बना सकता, ठीक है। तो इट मींस ये जो है ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, तो और क्या हो सकता है भाई, अगर 1 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है, अगर ये 1 नहीं हो सकता तो फिर क्या हो सकता है, सेकंड ऑप्शन क्या है 32,
12 नहीं है तो क्या होगा 32 होगा, तो इट मींस ये क्या बनेगा 32, ये क्या बनेगा हमारा 32, ठीक है। अब इसको 32 बनने के लिए डी को क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए, डी को क्या होना चाहिए 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 4, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 28 ओके। देखो यहां पे हमें 12 बनाना है, चलो हम 32 की बात ना करें, हम यहाँ पे पहले 12 ही बनाते हैं। अब हम 12 बनाते हैं तो 12 बनाने के लिए हम एक और तरीका हो सकता है 12 बनाने का, कि अगर मैं डी को क्या रख दूं 7 रख दूं, डी को क्या रख दूं मैं 7, क्योंकि अगर मैं डी को 7 रखता हूं, देखो डी को मैंने शुरू में जब 2 रखा तो 2 से तो बात नहीं बन रही, बट अगर मैं इसको क्या रखता हूं 7, तो अगर ये 7 होता है तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 28 प्लस 3 31, तब ये बन सकता है। तो अगर मैं इसको 1 रखूं और इसको क्या रखूं 7, क्या ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4 और 3 तो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, 3 कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, मतलब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कंटिन्यू कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक बात आपको समझनी है क्रिप्ट अरिथमेटिक में, इट इज लाइक ए ट्रायल बेस्ड मेथड, ठीक है, इसमें हम अप्लाई कर करके देखते हैं। No doubt this year this type of questions will be there in IPET examination, but these type of questions generally asked in TCS and Infosys examination, in which like with a single question like more than 2-3 questions you can easily solve. Okay, it's like a puzzle, mathematical puzzle, जहां पे आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है and you are having 10-20 minutes 10-12 minutes for solving this question, 10-12 मिनट हमारे पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए होते हैं टीसीएस और इन्फोसिस में, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है कि ये जो क्वेश्चन है उससे लिंक्ड 2-3 क्वेश्चन हमें मिल जाते हैं वहां पे इजीली, तो हम इसको कर पाते हैं, ठीक है। अब आईपीएट में किस तरह से पूछा जाएगा दैट इज अनसर्टेन, उसके बारे में हम बात नहीं कर सकते कि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 पूछे जाएंगे, या एक ही क्वेश्चन से लिंक्ड 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसको सोल्व कर लिया तो इजिली यू कैन सोल्व ए प्लस बी, ए बी सी डी ई भी निकाल सकते हैं, या सी डी ई भी निकाल सकते हैं, या मैं आपसे पूछूं कि ई ए सी बताओ, बी सी डी बताओ, एनीथिंग यू कैन टेल। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछ लिया कि सिर्फ ए बताओ क्या है, हो सकता है आईपीएट में ऐसा सिंपल क्वेश्चन आ जाए कि वो सिर्फ आपसे ए पूछ ले कि ये मल्टीप्लाई बाय 4 है तो बताओ ए क्या होगा, हो सकता है ऐसा, क्योंकि अगर क्वेश्चंस हमारे आईपीएट में क्या होंगे ज्यादा होंगे हर सब्जेक्ट से हर सेक्शन से, तो हो सकता है कि अगर ये हमारे इंक्लूडेड तो है सिलेबस में, हो सकता है इसका सिर्फ इजी क्वेश्चन पूछे वो, ठीक है। बट हम जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें उसको इस तरह से पढ़ना चाहिए कि सो दैट वी कैन सोल्व एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ओके, सो हम इसको पूरा इसलिए सोल्व कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 28 प्लस 3 31, 31 और 3 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 3 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। तो अब ये बन सकता है बात, अब ये क्या हो सकती है बात बन सकती है, ठीक है। बट 4 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या है 4, एंड 4 प्लस 3 इज 7, इट मींस यहां से यहां 3 कैरी फॉरवर्ड आया है, यहां से यहां कितना कैरी फॉरवर्ड आया 3, तभी तो ये पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया है, क्योंकि आपको 3 तो कैरी फॉरवर्ड चाहिए, तो सी की क्या वैल्यू पुट करें कि आपको 3 कैरी फॉरवर्ड मिले, सी की क्या वैल्यू पुट करें कि आपको क्या मिले 3 क्या मिले कैरी फॉरवर्ड, तो क्या पुट कर सकते हैं देखो, अगर आप 3 को सी को रखते हैं 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4 8 तो रख नहीं सकते आप, क्योंकि 8 तो ऑलरेडी क्या है डी है। अगर आप 7 रखते हैं 7 भी नहीं रख सकते, 7 से छोटा अगर आप रखेंगे तो क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। 6 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 24, 24 प्लस 3 इज 27, तब भी आपका कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक ही वैल्यू आपके पास बचती है दैट इज सी इक्वल टू 9, एक ही वैल्यू आपके पास बचती है फ्रेंड्स, वो क्या है सी इक्वल टू 9, इट मींस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36, 36 प्लस 3 इज 39, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब अगर आपको ए बी सी डी निकालनी है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट ए बी सी डी ई, ठीक है। अब मैं एक बार जल्दी से क्विकली थोड़ा सा आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूं कैसे हमने किया इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन क्या था, ए बी सी डी ई दैट इज इक्वल टू 4, ओके, और ये किसके इक्वल है दैट इज इक्वल टू ई डी सी बी ए, ई डी सी बी ए, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं कि ए क्या है इवन नंबर है, ए क्या है इवन नंबर, इट मींस ए क्या हो सकता है 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 8 हो सकता है, ठीक है। फिर हमने क्या क्या कहा कि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिप्ट अरिथमेटिक में फर्स्ट नंबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, नंबर कभी भी 0 से शुरू नहीं हो सकता, इट्स ए रूल बेसिकली, जस्ट रिमेंबर इट, नंबर कभी भी 0 से शुरू नहीं हो सकता, इट मींस ये 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ये 4 6 8 भी नहीं हो सकता, व्हाई, बिकॉज अगर ये 4 6 8 है तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 16, तो यहां पे 6 आएगा और एक आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, क्या यहां पे हमें कोई डिजिट दिख रहा है, देयर इज नो डिजिट, देयर इज नो अल्फाबेट हियर, इट मींस ए की वैल्यू 4 से 8 भी नहीं हो सकती, इट मींस देयर इज ओनली वन वैल्यू व्हिच ए कैन हैव दैट इज 2, दैट इज 2, ओके। सो ए को हमने क्या रख दिया 2, ए को हमने क्या रख दिया 2,
ओके क्लियर। अब सेकंड क्या है इंफॉर्मेशन हमारे पास कि ये जो हमारे पास ई है, ई को हम क्या रखें कि हमें ये क्या मिले, यहाँ पे 2 मिल जाए, यहाँ पे हमें क्या मिले 2, तो ई को हम क्या रख सकते हैं भाई, देखो ई को हम क्या 1 रख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 4 होता है, नहीं मिलेगा। क्या 2 रख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 8 मिलेगा। क्या 3 रख सकते हैं, यस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या मिल जाएगा हमें, 12 मिल जाएगा। तो ई को हम 3 रख सकते हैं, ई को हम 3 रख सकते हैं फॉर दिस टाइम इंस्टेंट, ई को हम 3 रख सकते हैं क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 12 और 1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। बट क्या अगर हम यहाँ पे 3 रखेंगे तो यहाँ पे भी तो ई 3 आएगा, अगर यहाँ पे ई 3 है तो यहाँ पे भी ई क्या आएगा 3, तो अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, यहाँ पे 3 आने के लिए मेरे पास 5 कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, यहाँ पे 3 आने के लिए क्या होना चाहिए 5 कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8 एंड 8 प्लस 5 इज 13, और 13 होगा तो यहाँ पे क्या है आगे भी, आगे क्या होगा कैरी फॉरवर्ड होगा तो यहाँ पे कुछ डिजिट आएगी, इट मींस ई इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, ई इक्वल टू 3 इज नॉट पॉसिबल, तो हमने 3 को हटा दिया। तो 3 के बाद क्या 4 हो सकता है, नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, 7 भी नहीं हो सकता, 8 हो सकता है, ई 8 हो सकता है क्योंकि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 32, 8 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 32, जैसे ही आप 8 पे आके रुके तो यहां पे आप लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 4 दैट इज 32, इट इज मैचिंग विद दिस, और 3 क्या है कैरी फॉरवर्ड, 3 क्या है कैरी फॉरवर्ड। अब 8 यहां पे है तो 8 हम यहां भी लिख सकते हैं क्योंकि 8 पॉसिबल है, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, इट मींस यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यहां से कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या है 8 है, अगर कैरी फॉरवर्ड होता तो ये कभी भी 8 नहीं होता, खत्म। अब उसके बाद देखो आपको वैल्यू पुट करनी है बी की, अब बी क्या हो सकता है भाई, यहां पे आपको क्या चाहिए बी और ए क्या होना चाहिए भाई, बी और ए क्या होना चाहिए, बी और ए मस्ट बी ए डिविजिबल बाय 4, बी और ए क्या होना चाहिए 4 से डिविजिबल होने चाहिए क्योंकि ये क्या है 4 का मल्टीपल है, और अगर ये 4 से डिविजिबल होगा तो ये क्या हो सकता है, देखो या तो ये 12 हो सकता है या ये 32 हो सकता है, कोई और ऑप्शन है ही नहीं है, या तो ये 12 हो सकता है या ये 32 हो सकता है, 4 का मल्टीपल देख लो, देखो 4 जीरो, जीरो तो हो नहीं सकता, ठीक है, बी क्या है 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 होगा तो तब भी ये 4 पे डिविजिबल नहीं है, 0 2 तो डिविजिबल नहीं है, ठीक है, तो 0 के बाद क्या है 1 1 2, 1 2 तो हमने रख लिया, 3 2 रख लिया, 4 2 नहीं हो सकता क्योंकि 4 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, 5 2 तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वाई क्योंकि 52 बन ही नहीं सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे 5 आने के लिए तो क्या चाहिएगा आपको, यहाँ पे क्या है आपको क्या चाहिएगा 52 क्या आएगा, आएगा नहीं क्योंकि 4 का मल्टीपल क्या आएगा मैक्सिमम 36, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36, ओके, तो 5 भी नहीं बन सकता, 32 के आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो अभी या तो 12 बनेगा या 32 बनेगा। अब 12 बनने के लिए डी को मैं क्या रख सकता हूं, पहला तो मैं डी को रखता हूं 2, पहला तो मैं डी को क्या रख सकता हूं 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, तो बन गया डी क्या बन गया 1 बन गया, डी क्या बन गया 1 बन गया, डी 2 रख के अगर मैं डी को 2 रख देता हूं तो ये 1 बन जाता है, ठीक है, बट अगर मैं डी को 2 रखता हूं तो डी को 2 मेरे को यहां भी रखना पड़ेगा, ठीक है, और बी को मेरे को 1 यहां भी रखना पड़ेगा, बी को 1 मेरे को यहां भी रखना पड़ेगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, अब 4 को 12 बनाने के लिए 12 बन नहीं सकता क्योंकि कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 12 बन नहीं सकता और घट भी नहीं सकता, तो ये दो पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 4 तो यही हो गया, इसमें कुछ ना कुछ ऐड होगा ना, इट मींस इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ बढ़ेगी, तो डी जो है वो दो पॉसिबल नहीं है, डी है जो दो पॉसिबल नहीं है। अब दो पॉसिबल नहीं है तो और कैसे हम यहाँ पे वन ला सकते हैं, अगर डी दो पॉसिबल नहीं है तो और कैसे वन ला सकते हैं, एक ही नंबर आएगा, देखो आपको चेक करना पड़ेगा माइंड में, जल्दी जल्दी चेक करना पड़ेगा, इतना टाइम इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको मिलता है, ठीक है, ट्रायल बेस्ड मेथड है, आपको इतना टाइम मिलता है, ठीक है, तो डी को और मैं क्या रख सकता हूं, डी को रख सकता हूं मैं 7, क्योंकि 7 मल्टीप्लाई बाय 4 मैं करूंगा तो 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 28 प्लस 3 इज 31, 31 यहां आ जाएगा और 3 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 3 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। अब अगर मैं डी को 7 रखता हूं तो क्या ये पॉसिबल है, बिल्कुल इसकी पॉसिबिलिटी बन रही है क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4 एंड 4 प्लस 3, इट मींस यहां से 3 अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ है तो ये बन सकता है, अगर यहां से 3 क्या हुआ है कैरी फॉरवर्ड तो ये बन सकता है, ठीक है। अब यहां हमें सी में चेक करना है, क्या सी की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे 3 आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाए, क्या सी की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 3 मतलब 4 का ऐसा मल्टीपल जो उसको 3 की लाइन में ले आए, 3 मतलब 32 36 और 40, अब 40 तो हो नहीं सकता, 32 और 36, ठीक है, तो सी क्या होना चाहिए 9, सी क्या होना चाहिए 9, क्योंकि 9 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 36 और 36 प्लस 3 इज 39 और 3 क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड, सो नाउ वी आर हैविंग सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, ओके, we are having complete solution of this question, easily we can find out a plus b plus c plus d,
ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई अगर हमें निकालना है तो इजीली वी कैन फाइंड आउट। तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 9 12, 12 और 8 20 और 7 कितना हो जाएगा 27। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी क्या हो जाएगा, डी प्लस ई क्या हो जाएगा 27। ओके, सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखो वो क्वेश्चन है 3 की एडिशन का, 3 की एडिशन का क्वेश्चन है। ठीक है, कैसे क्वेश्चन है, देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, नो प्लस नो, नो नो प्लस गन, नो प्लस गन इक्वल टू हंट, नो प्लस गन इक्वल टू हंट। तो आपसे पूछ रहा है कि ये बताओ कि हंट बताओ क्या है, HUNT पूछ रहा है क्या है। ऑप्शन है, एक क्या ऑप्शन है कि 1032, ठीक है। ऑप्शन बी क्या है 1052, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है 1082, ठीक है। ऑप्शन डी क्या है 1092, 1092, ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, नो प्लस गन इक्वल टू हंट। अब प्लस नहीं पूछ रहा, ये नहीं पूछ रहा कि H प्लस यू प्लस N प्लस टी बताओ, बोल रहा है हंट क्या है। हंट मतलब H क्या है, U क्या है, T क्या है, और उसको जब आप इकट्ठा लिखोगे तो क्या मिलेगा, यू विल गेट ए 4 डिजिट नंबर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, हालांकि देखो आप इसको ऑप्शंस भी यूज कर सकते हो, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखो वो तो सबसे लास्ट का एक तरीका है कि जब कुछ ना हो तो ऑप्शन से देखो, ठीक है, बट आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सोल्व हो रहा है। तो उसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, उसके लिए हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हमें करना है। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि जब हम दो नंबर्स की एडिशन करते हैं तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, दैट इज 1। When two numbers are added, maximum carry forward कितना होता है 1। और जब हम 3 को ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है 2। जब हम 3 को ऐड करें तो 3 क्या हो सकता है 9 प्लस 9 प्लस 9, तो क्या हो सकता है 27। और जब अगर 27 है तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना हो सकता है 2। तो जब भी हम 3 को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड होता है 2, और जब 2 को ऐड करते हैं तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना होता है 1। बस दैट इज अ डिफरेंट थिंग बिटवीन एडिशन ऑफ 2 एंड 3। 2 की डिजिट्स के एडिशन में और 3 की डिजिट्स के एडिशन में सिर्फ यही फर्क है, बाकी चीजें क्या है सेम है। ठीक है, तो ये चीज अगर हमें समझ में आ गई तो हमारे लिए क्या है बड़ा आसान है। देखो अब यहां से शुरू करते हैं, यहां पे हमें वैकेंट स्पेस दिख रहा है भाई, वी कैन इजिली सी वैकेंट स्पेस हियर। सो सबसे पहला चीज हम क्या निकाल सकते हैं कि H क्या होना चाहिए, ये H क्या होना चाहिए। देखो H या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है या 2, क्योंकि 0 तो हो नहीं सकता। H 0 नहीं हो सकता क्योंकि 0 से ये नंबर शुरू नहीं हो सकता, 0 होता तो हम इसको लिखते ही नहीं। 0 होता तो मतलब 0 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अगर 0 कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 0 को तो हम लिखते ही नहीं है। ठीक है, कभी भी नंबर 0 से शुरू नहीं हो सकता। ठीक है, अब ये 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, अब मैं कह रहा हूं कि 1 ही होगा, 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 2 होता तो ये नंबर क्या है, देखो G क्या है, G इज अ सिंगल डिजिट नंबर। G क्या है, सिंगल डिजिट नंबर जिसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9। G कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू 9, और इसको मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना मिल सकता है 2। जी को मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना मिल सकता है 2, तो यहां पे क्या बन सकता है 11, और 11 से आगे कैरी फॉरवर्ड क्या होगा 1। ये नंबर कभी भी, ये और इसका कैरी फॉरवर्ड कभी भी 20 से ज्यादा बन नहीं पाएंगे। ठीक है, और अगर ये आपके समझ में आ गया तो इजीली यू कैन राइट H इक्वल टू 1। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप H को क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे कोई एक नंबर और होता तब हमें सोचना पड़ता और एफर्ट्स करने पड़ते सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो H क्या हो गया 1। ठीक है, अगर H 1 है तो U क्या होना चाहिए भाई, U क्या होना चाहिए। अब देखो क्या U 12 हो सकता है, क्या U 12 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि G की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, और 9 को मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना मिल सकता है 2। G की मैक्सिमम वैल्यू 9 और G को मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड कितना मिल सकता है 2, और 9 प्लस 2 इज 11, और एक तो ये H ऑलरेडी हो चुका है, 1 तो H ऑलरेडी हो चुका है, इसका मतलब ये 11 दोबारा नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, ये 1 नहीं हो सकता, और 1 से ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, 12 हो नहीं सकता। वाई, बिकॉज 12 होने के लिए इसको कैरी फॉरवर्ड कितना चाहिए 3, और 3 कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। जब आप 3 की एडिशन कर रहे हो तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड क्या हो सकता है 2। ठीक है, तो ना तो ये 11 हो सकता, ना 12 हो सकता, ना उससे ऊपर हो सकता, और इसको एक आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना है, एक आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना है। इट मींस एक ही ऑप्शन बचता है कि यू क्या है 10 है, यू क्या बनता है 10, 10 मतलब कि ये 10 बन जाएगा तो 0, और 1 आगे क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। यू क्या है, यू क्या बन जाएगा 0,
जीरो मतलब ये क्या बन जाएगा 10, 10 मतलब जीरो यहाँ पे, और 1 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। और ये तभी हो सकता है जब जी कितना हो 9, जी कितना हो 9 या 8। अभी हम जी पे कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि जी 8 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, जी 8 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है, क्योंकि 8 हो, अगर ये 8 है तो इसको कैरी फोर्ड 2 आ सकता है तब 10 बन सकता है, और अगर ये 9 है तो इसको एक कैरी फोर्ड आ सकता है। तो यू 0 है बट जी क्या है 8 है या 9 है, इसका हम कंक्लूजन अभी नहीं निकाल सकते। बट एक चीज हम कर सकते हैं कि जहां जहां भी यू है वहां हम जीरो रख सकते हैं, जहां जहां भी हमें यू नजर आ रहा है वहां पे हम क्या रख सकते हैं, जीरो रख सकते हैं। ठीक है, अब देखो सेकंड इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या आती है कि देखो ये तो जीरो हो गया, ये क्या हो गया जीरो। अब दोनों अल्फाबेट क्या है सेम है, ये दोनों अल्फाबेट क्या है सेम है, यू क्या है जीरो और ये दोनों अल्फाबेट क्या है सेम। सेम मतलब इनकी वैल्यू क्या है, चलो मैं मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूं 9, मैक्सिमम वैल्यू मान लेता हूं मैं 9, तो 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 18, 18, और मैं दो कैरी फोर्ड भी मान लू, मैक्सिमम दो कैरी फोर्ड भी मान लू, हालांकि दो कैरी फोर्ड हो नहीं सकता क्योंकि ये जीरो दोबारा नहीं बन सकता, ये जीरो दोबारा नहीं बन सकता, तो दो तो कैरी फोर्ड नहीं हो सकता, इट मीन उससे कम ही कैरी फोर्ड हो रहा है, जो भी कैरी फोर्ड हो रहा हो, मतलब ये जो एन है, ये जो आपको यहां मिल रहा है, ये सिंगल आपको दो डिजिट का नंबर मिलेगा, मतलब ये 20 से कम मिलेगा। n प्लस 1 ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा इट विल बी लेस देन 20 ओनली। ये क्या मिलेगा आपको लेस देन 20, वाई बिकॉज u इज जीरो। और जब ये लेस देन 20 मिलेगा तो इसका कैरी फोर्ड एक ही हो सकता है, इसका कैरी फोर्ड क्या हो सकता है एक ही, मतलब ये कुछ भी मिल सकता है 11 12 13 14 15 उस लाइन में मिलेगा, 11 से 20 के बीच में, 11 से 19 के बीच में, बट ये क्या होगा आपको 20 से ज्यादा या 20 नहीं मिल सकता, तो इट मींस मैक्सिमम कैरी फोर्ड क्या होगा 1। अब हम कह सकते हैं कि जी कितना है 9, क्योंकि अब हमें कंक्लूजन समझ में आ गया है कि कैरी फोर्ड क्या है 1, और अगर 1 कैरी फोर्ड है तो जी को कितना होना चाहिए 9, तो अब हम यहाँ पे ये ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक सिंगल चीज और है इसमें फ्रेंड्स, वो आपको समझनी है क्या, जब भी कभी आपको देखो एन एन यहां दिख रहा है और दोबारा एन यहां दिख रहा है, एन एन यहां दिख रहा है एन यहां दिख रहा है, तो देखो ये तो जीरो है, इसको तो छोड़ ही दो, इसको तो आप छोड़ दो। इट मींस ये जो नंबर है ये 10 बन रहा है, 10 या 20, ये जो नंबर है क्या बन रहा है 10 या 20, 20 ये बन नहीं सकता, 20 ये बन नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है सिंगल डिजिट नंबर है, ये क्या है सिंगल डिजिट नंबर है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 9, और 9 को मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना मिल सकता है 2, तो ये 20 तो कभी बन नहीं सकता, और इसको 10 होना चाहिए, क्योंकि 10 जमा कुछ करेंगे तभी तो वही आएगा, क्योंकि देखो 10 जमा 2 क्या होता है 12, मतलब 10 जमा 2 किया, मतलब 10 जमा 2 2, तभी यहां पे दोबारा क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो ये नंबर 10 बनना चाहिए, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ये नंबर क्या बनना चाहिए 10 बनना चाहिए। ठीक है, और इसको मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना मिल सकता है 2, तो ये 7 से छोटा तो हो ही नहीं सकता, 7 भी नहीं हो सकता, ये 7 से छोटा नहीं हो सकता, और ये 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो ऑलरेडी जी हो चुका है, और ये 7 से छोटा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 7 रखता हूं तो मैक्सिमम कैरी फोर्ड तो 2 मिल सकता है, तो ये 10 बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इसको n को क्या होना चाहिए, यहां से मैं लिख सकता हूं कि n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8 होनी चाहिए, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8। अब ये 10 बन सकता है, क्योंकि 9 ये हो नहीं सकता, ठीक है, 7 भी हो नहीं सकता, तो और इसको 10 होना चाहिए। ठीक है, 7 से छोटा मैं रख नहीं सकता हूं, क्योंकि ये 10 कभी बन नहीं पाएगा, फिर 8 में 10 बनने के चांसेस हैं, और ये 8 ही होगा, और इसको 2 क्या मिल जाएगा कैरी फोर्ड, इस कॉलम से फर्स्ट कॉलम से 2 क्या मिल जाएगा इसको कैरी फोर्ड। नाउ आई कैन इजिली राइट 8 प्लस 2 10, अब 10 के कुछ भी ऐड करूं मैं, 10 के साथ कुछ भी ऐड करूं सेम डिजिट आ जाएगी, 10 के साथ में कुछ भी ऐड करूं क्या आ जाएगी सेम डिजिट, इट मींस 10 प्लस 8 क्या है 18, 18 का 8 यहां पे, और 1 क्या हो जाएगा कैरी फोर्ड, 1 क्या हो जाएगा कैरी फोर्ड। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया है, यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, यहाँ पे आप क्या रख सकते हैं 8, और आपको 2 क्या चाहिए कैरी फोर्ड, 2 क्या चाहिए कैरी फोर्ड, तो और वो क्या है सेम है, और वो क्या है सेम है, और आपको 8 ऐड करना है, तो आपको 2 क्या चाहिए कैरी फोर्ड, मतलब नंबर क्या बनना चाहिए मोर देन 20। तो अगर मैं इसको क्या रखता हूं देखो 6 और 6 रखता हूं, तो 6 प्लस 6 12, 12 प्लस इज 20, तो टी जीरो हो जाएगा, मतलब नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो क्या है यू ऑलरेडी जीरो हो चुका है, इट मीन ये 6 तो हो नहीं सकता। क्या मैं इसको 7 रख सकता हूं, देखो 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 22, 22, देखो 7 प्लस 7, अगर मैं इसको क्या रखता हूं 7 प्लस 7, ठीक है, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 8 क्या हो जाएगा हमारा 22, तो 2 यहां पे आ जाएगा, क्योंकि 2 हमने किसी को लोड नहीं किया, और 2 हमारा आगे क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, 2 हमारा क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि ना तो मैं इस ओ को 8 रख सकता हूं, क्योंकि 8 ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, ना मैं इसको 9 रख सकता हूं, क्योंकि 9 भी हम ऑलरेडी दे चुके हैं, 7 से छोटा ये हो नहीं सकता,
ठीक है, तो इसकी एक ही वैल्यू बचती है ओ की, वो क्या है 7, 7 प्लस 7 14, 14 और 8 22 और 2 क्या हो जाएगा कैरी फोर्ड। नाउ यू आर हैविंग ऑल वैल्यूज, आपके पास क्या है सारी वैल्यूज हैं, सो इजीली यू कैन राइट हंट, हंट को आप इजीली लिख सकते हैं। तो हंट क्या है 1082, हंट क्या है भाई 1082, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। सिर्फ दो चीजें आपको समझनी है फ्रेंड, जो रूल एक तरह से है या जो चीजें हैं जब भी आप इसको कर सकते हो, तो एक तो देखो, एक तो वैकेंट स्पेस देखना है, सबसे पहले क्या देखना है वैकेंट स्पेस, उधर से सोल्व करना है। अगर वैकेंट स्पेस ना मिले तो जरूर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आपको ये ऐसे 10 बनता हुआ देखेगा, चाहे 2 डिजिट का क्वेश्चन हो चाहे 3 का डिजिट का क्वेश्चन हो, कहीं देखो कि ऊपर सेम और नीचे क्या सेम वैल्यू मिल रही है, ऊपर एन या नीचे एन अगर ऐसा मिल रहा है इट मीन वहां पे 10 बनेगा। ठीक है, तो वहां से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और क्या है ये सारे यूनिक होंगे तो आपको ट्रायल करके देखना पड़ेगा, ट्रायल कर करके देखना पड़ेगा, तो इससे ये क्वेश्चन आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। ओके, एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं फ्रेंड्स इसको, और उसके बाद फिर हम उन 3 क्वेश्चंस पे मूव करेंगे जो हमने किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है देखो, ईट प्लस ईट प्लस ईट, ईट प्लस ईट प्लस ईट, ये तीनों क्या है बीट है, ईट प्लस ईट प्लस ईट क्या है बीट है। ठीक है, तो आपको अगर ये प्लस है, अगर ईट प्लस ईट क्या है बीट है, तो आपको बताना है टी प्लस ई टी क्या होगा। देखो टी प्लस टी क्या होगा, क्वेश्चन इज इफ ईट प्लस ईट इज इक्वल टू बीट, और तो टी टी ये क्या होगा, इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, आल्सो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, आल्सो गिवन टी इक्वल टू जीरो, आल्सो गिवन टी इक्वल टू जीरो, ये भी इंफॉर्मेशन आपको साथ में गिवन है कि टी कितना है जीरो, आल्सो गिवन टी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो टी इक्वल टू जीरो है, तो सबसे पहला तो क्या करना है आपको, जहां जहां टी दिखे वहां जीरो पुट कर दो भाई, जहां जहां टी दिखे वहां क्या पुट कर दो जीरो पुट, लास्ट में तो जीरो हो सकता है ना, इनिशियल जो पहला लेटर है अल्फाबेट है वो जीरो नहीं हो सकता, तो जीरो प्लस जीरो ये क्या है जीरो, जीरो प्लस जीरो क्या हो गया जीरो, और यहाँ पे क्या हो गया जीरो कैरी फोर्ड हो गया, यहाँ पे क्या हो गया जीरो कैरी फोर्ड, लिखना है लिखो नहीं तो आप नहीं लिखो। ठीक है, जीरो क्या है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए देखो, यहां से आपको इसको सोल्व करना है, यहां से आपको क्या करना है इसको सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो, अब पहली बात आती है हम बी पे, पहले किससे मूव करते हैं हम बी पे। अब बी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, बी या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या 2, ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है फर्स्ट है, पहला एक अल्फाबेट है या पहला एक क्या है डिजिट है जिसको हम जीरो नहीं कर सकते, जीरो कभी भी कोई नंबर जीरो से शुरू नहीं हो सकता, तो ये या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है, क्योंकि इसको मैक्सिमम कैरी फोर्ड क्या मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 1 मिल सकता है, 0 मिल सकता है, मैक्सिमम 2 मिल सकता है। ठीक है, तो एक या दो ही इसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अब अगर मैं इसको एक दो रखता हूं, अगर मैं इसको क्या रखता हूं दो, अगर मैं इसको क्या रखता हूं दो, ठीक है, तो ई को क्या होना चाहिए भाई, अब देखो एक वैल्यू मान लो, पहले एक वैल्यू मान लो कि बी कितना है दो, बी कितना है, लेट बी इक्वल टू क्या है टू, मान लीजिए मैंने पहले मान लिया बी कितना है दो, तो ये तीनों तो क्या दिख रहे हैं हमें सेम दिख रहे हैं, ये तीनों क्या दिख रहे हैं हमें सेम। ठीक है, और यहां भी क्या दिख रहा है हमें ई दिख रहा है, ये हमें क्या दिख रहे हैं सेम, और यहां भी क्या दिख रहा है हमें सेम ई दिख रहा है, इट मींस ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये क्या बनना चाहिए, या तो ये 10 बनना चाहिए या ये 20 बनना चाहिए, या तो ये वैल्यू क्या बनना चाहिए 10 या ये क्या बनना चाहिए 20, क्योंकि 10 जमा कुछ ऐड करोगे तभी तो वो आएगा, या 20 जमा कुछ ऐड करोगे तभी वो क्या आएगा सेम वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या रखता हूं, क्या रखूं कि मेरे को ये सेम वैल्यू मिले, तो क्या क्या रख सकता हूं, देखो इसको मैं क्या 5 प्लस 5 रख सकता हूं 10, हो सकता है एक केस बन सकता है। ठीक है, और दूसरा क्या केस बन सकता है कि अगर मैं इसको क्या रखता हूं, इन तीनों को क्या रखता हूं मैं, अगर मैं इसको रखता हूं 9, ठीक है, तो 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा, ये 9 प्लस 9 क्या हो जाएगा 18, और अगर दो मान लीजिए इसको दो क्या मिल रहा है कैरी फोर्ड, तो क्या मिल सकता है, क्या यहाँ पे 20 बन सकता है, यहाँ पे क्या बन सकता है 20 बन सकता है, 9 प्लस 9 इज 18। ठीक है, और दो यहां से क्या हो गया कैरी फोर्ड, तो ये क्या बन गया 20, ये क्या बन गया 20, 20 प्लस 9 तो ये 9 बन जाएगा और 2 आगे कैरी फोर्ड हो जाएगा, ये बन सकता है, ये बन सकता है। ठीक है, बट उससे आगे चेक करते हैं कि यहां से दो कैरी फोर्ड होने के लिए अब इन तीनों का क्या होना चाहिए, इन तीनों का क्या होना चाहिए कि यहां से दो कैरी फोर्ड हो जाए। ठीक है, यहां से कैरी फोर्ड क्या है जीरो, यहां से कोई भी कैरी फोर्ड नहीं है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है भाई, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, देखो 8 को मैं क्या रख सकता हूं, देखो 8 को मैं क्या एक रखूं,
एक रखूंगा तो कोई कैरी फॉरवर्ड मिलेगा नहीं, या दो रखूं, दो से भी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा, तीन रखूंगा तो तीन या नौ, तब भी कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। अगर मैं इसको रखता हूं चार, तो चार चार 16, तब भी कोई कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, लेकिन वो क्या मिलेगा, सिंगल मिलेगा। इसको चार रखने से क्या कैरी फॉरवर्ड मिलेगा, सिंगल। ठीक है, अब मैं इसको क्या रखूं कि मेरे को दो कैरी फॉरवर्ड मिले, तो मैं एक ही वैल्यू रख सकता हूं, 7। अगर मैं इसको क्या रख सकता हूं, 7, तो 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना हो जाएगा हमारा, अगर मैं इसको 7 रखता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 21। ये कितना हो जाएगा, 21। बट ई तो मैं ऑलरेडी कितना रख सकता हूँ, 9 रख चुका हूं, तो ये क्या है, क्या ये 1 हो सकता है, नहीं, क्योंकि ई क्या है, 9 है, तो इट मीन ये नहीं बन रहा है, सही नहीं बन रहा है। तो अगर मैं 7 के बाद क्या रखता हूँ उसको, 8, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 24। अब ये कितना बन रहा है, 4, तो ये नहीं बनेगा, 8 पे भी नहीं बनेगा, 9 पे भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये बी इक्वल टू 2 बन ही नहीं सकता, बी इक्वल टू 2 नहीं बनेगा। ठीक है, आपने चेक कर लिया, आप इसको दोबारा ट्रायल लगा के देख सकते हैं, तो बी हमारा जो है वो 2 नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो अगर बी 2 नहीं बनेगा, इट मीन बी क्या है, 1 है भाई। अगर बी 2 नहीं बनेगा, इट मीन बी क्या है, 1 है। तो अगर बी 1 है, तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, अब ये क्या बनना चाहिए, 10 बनना चाहिए। अब ये क्या बनना चाहिए, 10, क्योंकि अगर ये 1 है, इट मीन ये क्या बनना चाहिए, 10, क्योंकि ये टोटल नंबर क्या बनेगा, इट विल बी लेस देन 20। ये नंबर क्या बनेगा हमारा, लेस देन 20। इट मीन अब मैं कुछ वैल्यू रख सकता हूं कि दोनों क्या है, सेम है, और इसको क्या बनना चाहिए, 10 भी बनाना है हमें। इसको क्या बनाना है, 10। इट मीन मैं ई को रख रहा हूं 4, ई को क्या रख रहा हूं मैं, 4। तो 4 प्लस 4 इज 8, और दो इसको क्या मिल गया, कैरी फॉरवर्ड, दो इसको क्या मिल गया है, कैरी फॉरवर्ड। तो 4 प्लस 4 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10, और 10 प्लस 4 इज 14, 14 का 4 यहां पे, और 1 क्या हो गया है, कैरी फॉरवर्ड, 1 क्या हो गया हमारा, कैरी फॉरवर्ड, फॉरवर्ड। ठीक है, अब क्या ये सही बन रहा है हमारा, बिल्कुल सही बन रहा है, बिल्कुल हमारा सही बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस हमें यहां पे 4 चाहिए, हमें क्या चाहिए, यहां पे हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए, ई की जगह हमें क्या चाहिए, 4। ठीक है, तो हमें ई को 4 चाहिए, क्योंकि ई तो 4 ऑलरेडी हो चुका है, तो ए की क्या वैल्यू रखें कि ई 4 बन जाए, ई की क्या वैल्यू रखें कि ई ये क्या बन जाए, 4, और दो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए, दो आगे कैरी फॉरवर्ड भी हो जाए, तो ए की वैल्यू बनेगी, दैट इज इक्वल टू 8। ए की क्या वैल्यू बनेगी, 8, क्योंकि 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना बनेगा, 24, तो 4 यहां पे आ जाएगा, और दो क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। तो नाउ वी आर हैविंग ऑल वैल्यूज, हमारे पास क्या आ गई है, सभी के सभी वैल्यूज आ गई है, टी की वैल्यू आ गई है और ई की भी वैल्यू आ गई है, तो इजिली वी कैन फाइंड आउट टीई प्लस टीई, हम इजिली टीई प्लस टीई निकाल सकते हैं, क्योंकि टी कितना है भाई, टी कितना है हमारा, 0, ये कितना है, 0, ये कितना है हमारा, 4, ये कितना है, 4। ठीक है, तो इसको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब ये मत कहना सर जीरो कैसे लगा दिया शुरू में, क्योंकि हम थोड़ा ना लगा रहे हैं यार, ये हमने रूल में नहीं लगाया, उसने पूछा है। टी की टी तो यहाँ पे कहीं टी जीरो फर्स्ट नंबर था क्या, कहीं पे यहाँ पे टी फर्स्ट नंबर था, नहीं था, क्योंकि ये गिवन डाटा था। ठीक है, तो टी 0 आ गया, अब टी 0 आ गया तो उसने पूछ लिया ना कि टी प्लस टी बताओ, तो जो टी आया हम तो वही पुट करेंगे ना, तो हमने टी को 0 पुट कर दिया, तो वी विल गेट 088। मतलब जो आंसर होंगे वो आपको ऐसे दिए होंगे, ए इक्वल टू 084, ठीक है, डी इक्वल टू 086, ठीक है, सी इक्वल टू 088, ठीक है, या डी इक्वल टू 090। ठीक है, तो आप इसको इजिली टिक कर सकते हैं, क्योंकि आपका टी प्लस टी क्या आ गया है, 088। ठीक है, तो इस तरह से आप फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको इन क्वेश्चंस को क्या करना पड़े, एक दो बार ज्यादा बार आपको देखना पड़े। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एक बार में, ऐसा हो सकता है, देखो ऐसा नहीं कि सबके एक बार में समझ में आ जाएगा, तो आप इसको मल्टीपल टाइम्स देखेंगे तो हो सकता है ये आपके समझ में आ जाए क्विकली। तो देखो जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था वो क्वेश्चन सोल्व करते हैं भाई, होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन दिया था उसको सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेंड मोर मनी, सेंड मोर मनी, इसको हमें सोल्व करना है, इसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो दो का तो अब आपको बड़ा आसान लगेगा, दो का आपको क्या लगेगा, आसान, क्योंकि यहां से कैरी फोर्ड हो सकता है तो ये 1 ही हो सकता है भाई, अगर कैरी फोर्ड हो सकता है तो ये 1 ही हो सकता है, तो ये कितना है, 1, ये कितना है, 1। अब ओ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 11 हो नहीं सकता, क्योंकि एम ऑलरेडी 1 बन चुका है, 12 ये बन नहीं सकता, ओ क्या है, 11 बन नहीं सकता, क्योंकि 1 क्या है, एम बन चुका है, 12 ये कभी भी बन नहीं सकता, क्योंकि एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 9, तो 9 प्लस 1 10, और मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना मिल सकता है, 1 ही मिल सकता है, तो या तो ये 11 बन सकता था या ये 10 बन सकता है, क्योंकि इसको एक तो कैरी फोर्ड करना है ना, इट मीन ये 10 ही है, क्योंकि 11 ये नहीं बन सकता, क्योंकि ये दोनों क्या है, यूनिक है। ठीक है, तो ओ क्या हो गया, 0, ओ क्या हो गया, 0,
और यहां से कैरी फॉरवर्ड कितना है 1 है, यहां से कैरी फॉरवर्ड कितना है 1, क्योंकि इसको 10 बनना है, 10 बनना है तो मैक्सिमम कैरी फॉरवर्ड चाहिएगा, क्योंकि एस कितना है 9, क्योंकि एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 9, तो एस कितना होगा 9, ये 8 नहीं हो सकता, वाई क्योंकि अगर ये 8 होगा तो 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9, और एक क्या हो जाएगा 10, तो ये 8 9 दोनों हो सकते हैं। एस पे अभी हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि एस 8 है या 9 है, बट ये क्या है 0, ओ कितना है 0, अब 0 है तो यहां तो हम 0 लिख सकते हैं ना, अगर ये 0 है तो क्या यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, बिल्कुल हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ई की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 9 हो सकती है, ई की वैल्यू या तो 9 हो सकती है या 8 हो सकती है, अगर ये 9 होगी तो इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा, क्योंकि अगर कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा तो ये n क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा, क्योंकि 9 + 1 = 10 और 0 तो o बन चुका है ऑलरेडी, तो ये क्या है 0 नहीं बन सकता, ये 0 नहीं बन सकता, और ये 11 भी नहीं बन सकता, 12 भी नहीं बन सकता, ठीक है। और ये कब पॉसिबल है, जब आपको ये नंबर क्या मिले, जो n क्या मिले, आपको <9 मिले, n क्या मिले <9, मतलब ये तभी पॉसिबल है अगर यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड ना हो, ये तभी पॉसिबल है जब यहां से कोई भी कैरी फॉरवर्ड ना हो, इट मींस यहां से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, यहां से कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, ठीक है। अब अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं है तो एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 9 होनी चाहिए, नाउ वी कैन कंक्लूड कि व्हेन देयर इज नो कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम दिस थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम से कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं है, तो अब एस कितना होना चाहिए 9, तो 9 + 1 10, अब हमारा यहां से बात बन जाएगी, ठीक है। अब देखो उसके बाद हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि जो ये ई है, ई क्या ई इक्वल टू एन हो सकता है, क्योंकि ओ तो 0 है, क्या ई इक्वल टू एन हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बोथ क्या है यूनिक है, ये कब हो सकता है जब यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड मिल रहा हो, जब यहां से कुछ कैरी फॉरवर्ड मिल, यहां पे कंपलसरी है कि कैरी फॉरवर्ड आना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं आएगा तो ई + 0 तो ई आ जाएगा, वो नहीं है क्योंकि दोनों क्या है डिस्टिंक्ट है, तो यहां से कैरी फॉरवर्ड आएगा, और आएगा तो कितना आएगा 0 1, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो 0 आएगा, 2 डिजिट है, और अगर आएगा तो कितना आएगा 1, तो 1 यहां से कैरी फॉरवर्ड मिल रहा है, इट मींस वी कैन राइट ई + 1 = n, यहां से हम क्या लिख सकते हैं e + 1 को क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, e + 1 को हम क्या लिख सकते हैं n लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से आपको हिंट मिल रहा है, क्योंकि इसको आप e की टर्म में लिख पा रहे हैं, ये r है और ये क्या है e है ऑलरेडी, तो आप इसको इजीली सोल्व कर पाएंगे अगर आप इस n को क्या रख दें e + 1 रख दें, इस n को अगर आप क्या रख दें e + 1 रख दें, इजीली यू कैन सोल्व दिस, हाउ, देखो मैं यहाँ पे n की जगह रख रहा हूँ e + 1, n की जगह क्या रख रहा हूं मैं e + 1 + r, e + 1 + r इक्वल टू, क्या मैं इसको e लिखूं या e + 10 लिखूं, इसको मैं e लिखूं या e + 10 लिखूं, देखो e अगर मैं लिखता तब अगर यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं गया होता, n + 1, n क्या है देखो ये क्या है n, ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू n, तो n + r इक्वल टू e क्या लिख सकता हूं मैं, नहीं लिख सकता, n + r को मैं क्या लिख सकता हूं e + 10, n + r को मैं क्या लिख सकता हूं e + 10, कब, अगर यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, अगर यहां से कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है तब, ठीक है। तो e + 1 + r = e + 10 ये मैं लिख सकता हूं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं फ्रेंड्स, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो r क्या आ जाएगा मेरे पास 9 आ जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो r क्या आ जाएगा 9, तो क्या r 9 हो सकता है, नहीं, क्योंकि 9 तो s ऑलरेडी हो चुका है, r 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9s ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब क्या हो सकता है, क्योंकि ये तो ट्रू है, ये इक्वेशन तो ट्रू है, और इसमें नई इक्वेशन क्या बन सकती है कि चलो यार मान लेते हैं कि इसको अगर ये इक्वेशन नहीं बन रही तो इसको 1 कैरी फॉरवर्ड मिल रहा होगा भाई, अगर ये नहीं बन रही तो हो सकता है इसको 1 क्या मिल रहा हो कैरी फॉरवर्ड मिल रहा हो, ये इक्वेशन हमने इनिशियली लिखी थी विदाउट एनी कैरी फॉरवर्ड, और अगर कैरी फॉरवर्ड है तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 + n, n क्या है e + 1, 1 + n + 1 + n, क्योंकि 1 क्या है कैरी फॉरवर्ड, तो 1 + n, और n क्या है e + 1 + r = e + 10, e + 10, इसको जब आप सोल्व करोगे यू विल गेट r = 8, इसको जब आप सोल्व करोगे यू विल गेट r = 8, तो r आपके पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, r = क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा, ठीक है, 8 हमारे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आपको यहां से कुछ वैल्यू रखनी है और 1 आगे क्या करना है कैरी फॉरवर्ड, 1 आगे क्या करना है कैरी फॉरवर्ड, देखो इसको आपको क्या होना चाहिए, देखो अगर मैं कहूं कि ये जो दोनों नंबर है, देखो मैं यहां लिख देता हूं, जो D और E है, जो D और E है, इनका कम से कम 6 और 5 होना जरूरी है, किसी एक का क्या है
6 और 5 होना जरूरी है, क्योंकि 6 और 4 10 तो मैं नहीं बोल सकता, 6 और 4 10 में नहीं बोल सकता, क्योंकि 6 और 4 10 तो 0 हो जाएगा और 0 नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं 6 और 5 भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक ऑलरेडी है, एक ऑलरेडी है। इट मींस 6 और 5 नहीं हो सकता, और दोनों क्या है, ये डिस्टिंक्ट है, दोनों क्या है, ये डिस्टिंक्ट है। इट मींस डी और ई में, डी और ई में कम से कम 7 या 5 होना जरूरी है। डी और ई में कम से कम 7 और 5 होना क्या है, जरूरी है। 7 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कम से कम ये होना जरूरी है। अगर इसको एक क्या करना है, कैरी फोर्ड करना है, इसको एक क्या करना है, कैरी फोर्ड करना है, तो 7 और 5 होना क्या है, जरूरी है। तो चलो अब मैं किसको साथ रखूं, डी को साथ रखूं या ई को साथ रखूं? देखो अगर मैं इसको साथ रखता हूं, ई को अगर मैं साथ रखता हूं, तो एन क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्योंकि ई के एन क्या है, ई प्लस 1। तो क्या एन 8 हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आर तो ऑलरेडी 8 हो चुका है। ठीक है, तो ई 7 नहीं हो सकता। अगर ई 7 नहीं हो सकता तो डी को 7 रख दो वही। अगर ई 7 नहीं हो सकता तो डी को हम 7 रख सकते हैं। अगर ये 7 है तो ये क्या है, 5। ये कितना है, 5, क्योंकि मिनिमम ये होना चाहिए, क्योंकि ना तो ये 11 बन सकता, ना ही ये 10 बन सकता। मिनिमम ये कितना बन सकता है, 12। मिनिमम कितना बन सकता है, 12। अब 12 के कॉम्बिनेशन देख सकते हो आप, 12 के कॉम्बिनेशन कैसे बन सकते हैं? क्या 6 से 12 बन सकता है? नहीं बन सकता। ठीक है, क्या 7 और 5 12 तो हमने लिख लिया। क्या 8 और 4 12 बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 8 तो ये है। क्या 9 3 12 बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि 9 क्या है, एस है। तो 12 के लिए, क्योंकि हम तो मिनिमम से शुरू करेंगे ना, 11 10 नहीं हो सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 पे देखते हैं। तो 7 और 5, ठीक है, 7 और 5 12। तो 12 अगर ये है तो 2 हमने क्या दे दिया इसको, 2 हमने क्या दे दिया, इसको दे दिया है। एक आगे कैरी फोर्ड हो गया, अभी तक ठीक चल रहा है, अभी तक सब कुछ क्या है, ठीक है। तो एक क्या हो गया, कैरी फोर्ड। ई कितना रखा हमने, 5। ई कितना रखा हमने, 5। तो 5 हमने यहां पे रख दिया है। देखो ये क्या है, 1 1 और 8 कितना होता है, 9। 9 में क्या ऐड करें, 9 में क्या ऐड करें कि वो क्या बन जाए, 15 बन जाए? इट मीन ऑब्वियसली आपको 6 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि 8 प्लस 1 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15। तो 5 यहाँ पे, 1 आगे कैरी फोर्ड। तो ये तो आपका 5 है ही है, और 5 प्लस 1 क्या है, 6 है। और क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ट्रायल बेसिस पे ही होगा, आपको ट्रायल करके इसको देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसको सोल्व कर पाए हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नहीं सोल्व कर पाए तो अब इसको ट्राई आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स, जो आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया था, दैट इज यूएसएसआर प्लस यूएसए। यूएसएसआर प्लस यूएसए ये किसके इक्वल था, दैट इज इक्वल टू पीस। यूएसएसआर प्लस यूएसए इक्वल टू पीस, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखो यूएसएसआर प्लस यूएसए इक्वल टू पीस, और देखो पी क्या हो सकता है, पी तो 1 ही हो सकता है। पी क्या हो सकता है भाई, 1 हो सकता है। पी कितना है, 1, क्योंकि मैक्सिमम कैरी फोर्ड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। ठीक है, तो पी क्या है, 1। अब यू क्या हो सकता है भाई, यू क्या हो सकता है? ठीक है, अब देखो यू को मैं अगर 8 रखता हूं तो इसको कैरी फोर्ड कितना मिलेगा, कैरी फोर्ड तो 1 ही मिल सकता है। कैरी फोर्ड कितना मिल सकता है, इसको 1 ही मिल सकता है। ठीक है, तो 8 प्लस 1 तो 9 बनेगा, तो ये कैरी फोर्ड कैसे करेगा, नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें, यू की क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि इसको मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना मिल सकता है, 1 मिल सकता है। मैक्सिमम कैरी फोर्ड कितना मिल सकता है, 1। तो इट मीन यू इज इक्वल टू 9, और 9 प्लस 1 कितना है, 10। तो ई कितना हो गया, 0। ई कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे भी 0 रख दो। ठीक है, और जहां पे u है वहां पे क्या रख दो, 9। यहाँ पे क्या रख दो, 9। अब हमारे पास क्वेश्चन को सोल्व हो गया है। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, अभी तक सोल्व हो गया है। ठीक है, अब हमें r प्लस ए को क्या चाहिए, 0 चाहिए। r प्लस ए क्या चाहिए, 0। देखो r प्लस ए को 0 करने के लिए क्या हो सकता है, देखो r प्लस ए को 0 होने के लिए क्या हो सकता है, क्या मैं इसको 1 9 लिखूं, क्या मैं इसको किसी एक को 1 या किसी दूसरे को 9 लिखूं, 1 9 लिखूं, नहीं, क्योंकि 1 9 तो नहीं हो सकते, क्योंकि 1 भी ऑलरेडी हम अलोड कर चुके हैं, 9 भी ऑलरेडी अलोड कर चुके हैं। क्या 2 8 लिख सकते हैं, चलो 2 8 लिख सकते हैं भाई, 2,8 लिख सकते हैं। आर ए को क्या लिख सकते हैं, 2,8। एक तो ये सेट बन सकता है। दूसरा सेट क्या बन सकता है, क्या 3,7 लिख सकता हूँ, चलो 3,7 भी हम चेक कर सकते हैं। 3,7 भी हम चेक कर सकते हैं। क्या 6,4 लिख सकता हूँ, या 4,6 लिख सकता हूँ, 4,6 भी लिख सकता हूँ। क्या 5,5 लिख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, डिस्टिंक्ट है। तो ये 3 ही ऑप्शन बनते हैं हमारे पास, या तो 2,8 3,7 या 4,6। अब कौन 2 है कौन 8 है वो हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये वैल्यूज इसकी बन सकती है। ठीक है, अब देखो किससे चेक करें, किससे चेक करें, देखो अगर मैं पहले 2 और 8 से चेक करता हूँ, मैं किससे चेक करता हूँ, 2 और 8 से, क्योंकि मेरे पास पहला यही बन रहा है, 2 8 3 7 और 4 6। ठीक है, अब मैं 2 किसको रखूं, 8 किसको रखूं? अब मेरा दिमाग क्या कहता है भाई, देखो 9 के साथ कुछ ऐड करके यहाँ ए आ रहा है, 9 के साथ कुछ ऐड करके यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है।
तो मैं देखो ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, ये वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, चलो मान लो ये 8 7 कुछ भी है, ये 7 है, तो 9 और 7 कितना बन सकता है 16। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये शायद कुछ स्मॉल वैल्यू होनी चाहिए, ये क्या होनी चाहिए, कुछ स्मॉल वैल्यू होना चाहिए, ऐसा मेरे को लग रहा है। ठीक है, तो आप इसको, मैं इसको 2 रख रहा हूं, इसको 8 रख रहा हूं, इसको 2 रख रहा हूं, इसको क्या रख रहा हूं 8। चेक कर लेते हैं। तो 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो 10 हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, एक क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, एक क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, अभी तक ठीक चल रहा है, अभी तक सब कुछ ठीक है। तो इसको 2 रखा है तो इसको भी 2 रखना पड़ेगा, इसको अगर 2 रखा है तो इसको भी 2 रखना पड़ेगा। इट मीन अगर ये 9 है, 9 को ये 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, 9 को 2 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 12 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 12 बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब 12 बनाने के लिए एस को क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं एस को 2 तो रख नहीं सकता, क्योंकि 2 तो क्या है ऑलरेडी ए है, 2 क्या है ऑलरेडी ए है। तो क्या मैं एस को 3 रख सकता हूं, रख सकता हूं, फिलहाल तो मैं 3 रख सकता हूं, एस को मैं फिलहाल 3 रख सकता हूं। ठीक है, तो 3 रखा, तो नोट 3 12 और एक आगे क्या हो गया कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, तो इसको मैं क्या 3 रखूं, रख सकता हूं, तो 3 और 3 एक साथ। क्या कोई यूनिक, कोई ऐसा कुछ हो रहा है क्या, कोई नंबर क्या है मिसमैच कर रहे हैं, देखो S3 क्या कोई और 3 है, नहीं है, क्या U9 कोई और 9 है, नहीं है, P1 क्या कोई और 1 है, नहीं है, E0 कोई और 0 नहीं है, A2 कोई और 0 नहीं है। बस आपको जो सोल्यूशन निकले, एक तो वो क्या हो जो पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसको मैच करे, ठीक है, यूनिकनेस को मैच करे और क्वेश्चन को मैच करे। मल्टीपल सोल्यूशन भी हो सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल सोल्यूशन नहीं हो सकते, हो सकते हैं, बट अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं है तो देयर कैन बी मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, बट अगर वो क्वेश्चन प्रॉपर्ली डिजाइंड है तो उसका एक ही सोल्यूशन आपको निकलेगा। ठीक है, तो आपको जो सोल्यूशन आप निकालोगे वो आपको ऑप्शंस में मिलेगा, तो इसको आप जब सोल्व करोगे तो दिस वैल्यू यू विल गेट। ओके, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन फ्रेंड्स, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10250 ये क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक भी कर लेते हैं एक बार, 8 और 2 10, 0 एक अपना कैरी फोर्ड हो जाएगा, 3 और 3 6 और एक 7, 9 और 3 12 और एक 9 और एक 10 और एक। ठीक है, ये हमारा सब कुछ क्या है ठीक है, मेरे हिसाब से क्या है ठीक है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, सो this is friend, this is all about today's class. We have solved some questions related to multiplication and number addition of the 3 digits. Okay, and we have solved some previous year questions also. So एक कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, वो भी आप थोड़ा ट्राई करोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, वेट प्लस ओल, वेट प्लस ओल दैट इज इक्वल टू गिफ्ट्स। वेट ओल अगर सभी वेट करोगे तो उनको गिफ्ट्स मिलेंगे, है ना, वेट ओल इक्वल टू गिफ्ट्स, वेट प्लस ओ इक्वल टू गिफ्ट्स। ठीक है, तो आपको गिफ्ट है क्या है, आपको क्या बताना है, GIFT बताना है, क्या है GIFT बताना है। ठीक है, अब अपनी मर्जी से एस मत जोड़ देना इसमें, मैं आपसे खाली GIFT पूछ रहा हूं, व्हाट इज GIFT, वेट प्लस ओल इक्वल टू गिफ्ट, तो आपको बताना है GIFT, ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपको सोल्व करना है, ये भी आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन क्या है आप नोट करेंगे, लेट प्लस ली, लेट प्लस ली इक्वल टू ओल, लेट प्लस ली इक्वल टू क्या है ओल है, लेट प्लस ली इक्वल टू क्या है ओल है, और इसमें एक और इंफॉर्मेशन गिवन है, गिवन ई इक्वल टू 5, गिवन क्या है ई इक्वल टू 5, तो आपको a+l+l बताना है, आपको क्या बताना है a+l+l, गिवन क्या है e इक्वल टू 5, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट प्लस ली इक्वल टू ओल। ठीक है, एक 3 की मल्टीप्लीकेशन का भी 3 की एडिशन का भी देता हूं मैं, एक 3 की एडिशन का भी देता हूं, थर्ड क्वेश्चन, AA BB and CC, AA plus BB plus CC that is equal to ABC,
ए प्लस बी, बी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए बी सी। तो आपको बताना क्या है, आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी बताना है, आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी, आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप प्रिपेयरिंग।